discussing special toxicology. And in special toxicology, firstly, we will just have a reminder about the classification. A mnemonic is there known as the SYNCAM, in which you know about C means corrosives, I means irritants, N for neurotics, okay? And then again C for cardiac poisons, A for asphyxiants, and M for miscellaneous. So इसको हम SYNCAM के नाम से याद रख लेते हैं. All the poisons are covered under this classification. In this, the topic which we are going to discuss is neurotics. Okay? So these are all the classifications. About like subdivisions and classification, and these all classifications are based on the mode of action. For example, if we are discussing about neurotics, it means these are the poisons which affect on the nervous system. Okay? So ये classification हो गई. And then in neurotics, जब हम further इसे divide करेंगे तो there can be the cerebral poisons and there can be the spinal poisons and there can be the peripheral poisons. ठीक है? Cerebral poisons के अंदर further division is like that कि they act on, as you know, about the cerebral cortex and it also acts on the medulla. ठीक है? और इसमें जो तीन टाइप के पॉइजन्स आ जाते हैं उनमें फर्स्ट टाइप ऑफ पॉइजन्स आर नोन एज somniferous poisons, ठीक है, which produce and induce sleep and reduce pain. So these are known as somniferous poisons, and in somniferous poisons, opiums and its alkaloids and pethidine, these are the two subgroups. मुझे दो, ठीक है? So तीन आपने सिंपल याद रखने की ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है. In broader classification, we are talking about neurotics. In neurotics, there can be the cerebral poisons, there can be peripheral poisons, and there can be spinal poisons. ठीक है? Depending on the part of the central nervous system or peripheral nervous system on which that specific poison is going to act. ठीक है? In this, we are talking about the cerebral poisons, and in cerebral poisons, 2 or 3 types. First one is known as somniferous poison, which we are going to discuss today, having opium and its alkaloids, and along with it pethidine. Then there can be inebriant poisons, जो volatile होते हैं, जो चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है? In which we will discuss in future about alcohol, ठीक है, anesthetics, sedative and hypnotics, various fuels and insecticides. These are also acting on the cerebral cortex and medulla, so they are known as the cerebral poisons. And the third subdivision of the cerebral poison are deliriant. No talking. So deliriant, as the name shows, produce deliriums by affecting on the central nervous system, and basically it has 3 types: datura, cannabis indica, and cocaine. ठीक है? These are all cerebral poisons और ये different kind of इनके symptoms and signs होते हैं because they are affecting on different receptors. So today we are going to discuss about the somniferous poisons. ठीक है? और ये फिर हमने spinal poisons है जो बाद में पढ़ेंगे, naloxone and strychnine. So opium and its alkaloid. You all know about the name of opium. आपने जनरल टॉक्सिकोलॉजी में भी opium के बारे में सुना और पढ़ा है. We have learned in everyday life कि morphine is a very important painkiller, ठीक है, जो यूज होता है for sedation, for painkiller purposes, specifically in surgical operations, gynecological complications and all this stuff. So that morphine is basically derivated from the opium and its alkaloid. And opium itself can be used because it is a drug of abuse, ठीक है, और ये ऐसे भी बहुत से जो drug addicts होते हैं they use opium as such. Crude opium is also used, and the morphine is the refined form of this opium. So हम आज जो डिस्कस करेंगे, according to that you should know about कि कौन से receptors हैं जहाँ पे opioid receptors हैं जहाँ पे जाके इफेक्ट करेगा और different kind of symptoms अपने कैसे बनाएगा, ठीक है. फिर हम देखेंगे कि कैसे नेचुरली इसके प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या टाइप ऑफ सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करता है, और फिर डायग्नोज. सबसे इम्पॉर्टेंट द थर्ड पॉइंट, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सिनेरियो यूज इन स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी में. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आपने स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी याद रखनी है, आपने अपने रजिस्टर में, अपने माइंड में, अपने नोट्स में सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली पॉइजन्स को अलग करते जाना है.
सो यहाँ पे क्योंकि आप जब काम भी करोगे इंशाल्लाह मेडिकल लीगल में या तो आप लोग जब वहाँ पे होंगे तो वो सिम्टम्स आपके सामने प्रेजेंट होंगे और वो आपको साइंस और सिम्टम्स जो होंगे वो आपको स्पेसिफिक लीड के ऊपर लेके जाएंगे कि आपने फटाफट डायग्नोज भी कैसे करना है अकॉर्डिंग टू स्कैंडिनेवियन मेथड भी आपने किस तरह रहना है और अपने साथ साथ उस पेशेंट को ट्रीट भी कैसे करना है. तो डायग्नोसिस ऑफ ओपियम पॉइजनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ टुडेज लेक्चर. So opioid, आपको पता है opioid basically these are the class of the drugs, ठीक है, which reduce moderate to severe pain. It can be, ठीक है, made from the opium, ठीक है, उससे भी ले सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर specifically modification करके labs में भी this can be produced. ठीक है, basically क्या करते हैं ये कि opioid receptor के ऊपर इफेक्ट करते हैं और जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देते हैं. By which a patient feel numbness, a patient can be pain free because of that. ठीक है, जहाँ जहाँ पेन रिसेप्टर्स हैं, जहाँ जहाँ opioid रिसेप्टर्स हैं, वहाँ जाके ये अपना इफेक्ट करते हैं. That is why सेंसिटिव ये है, but ये स्पाइनल में भी आपको हेल्प कर देता है कि वहाँ पे भी अगर कोई पेन है और आप ओपियम या मॉर्फिन उस पेशेंट को लगा रहे हैं, तो पेशेंट कैन बी पेन फ्री because of that. But the main problem is like if you are going to take various doctors because about the dangerous drug जो rule होता है in which a registered medical practitioner can possess specific type of drugs like एक normal इंसान है वो अगर जाता है pharmacy के ऊपर और उसके पास prescription नहीं है तो उसको ये वाली drugs नहीं मिल सकती. ठीक है, जिसमें एक इंडियन हैम्प या ओपियम ये सब आती है डिफरेंट. उसमें ये होता है कि डॉक्टर अगर मेडिकल ऑफिसर है या उसका क्लिनिक है तो ही और शी कैन पोजेस दीज ड्रग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट कि उसको एक स्पेसिफिक डोज में देनी है. तो देयर आर मेनी डॉक्टर्स इवन पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज विच कैन हैव द अब्यूज ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग. ठीक है, वो मॉर्फिन के एडिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज पोजेशन है, एक इंसान को पेन हो रहा है तो पेन के थ्रेशोल्ड को करते करते एडिक्शन जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंटली डेवलप हो जाती है. एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट यू नो अबाउट हेरोइन. ठीक है, हेरोइन का सबको पता है. वो क्या हुआ था कि जब मॉर्फिन को हमने एंटीडोट उसका निकालने की कोशिश की थी तो वो मॉर्फिन के एंटीडोट के तौर पे निकाली गई थी, डराई हुई थी कि इसको यूज़ करेंगे और मॉर्फिन के जो क्रोनिक पॉइजनिंग है या जो क्रोनिक एडिक्ट्स हैं उनको इससे ट्रीट कर सकेंगे. बट व्हाट हैपेंस, हेरोइन की जो एडिक्शन की प्रॉपर्टीज थी वो 100 टाइम्स मोर निकली एज कम्पेयर टू द मॉर्फिन और वो ज़्यादा ड्रग ऑफ अब्यूज़ बन गई जिसको वाइट पाउडर भी बोलते हैं, वाइट गोल्ड भी बोलते हैं कि ये ज़्यादा उससे भी ज़्यादा होगी. दैट इज़ वाई कि आप उसमें इसको यूज़ नहीं करते. सो ड्रग एडिक्शन एंड अलॉन्ग विद दैट एज आई टोल्ड यू अर्लियर देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज ऑफ ड्रग्स. ठीक है, एक होती है साइकोलॉजिकल एडिक्शन, एक होती है फिजिकल एडिक्शन. निकोटीन की क्या होती है? साइकोलॉजिकल एडिक्शन. ठीक है, अल्कोहल की क्या होगी? इसी तरह जैसे धतूरा पॉइजनिंग है, कैनबिस इंडिका है जिसमें चर्च और ये सब आते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल एडिक्शन होती है. बट ओपियम इज अ थिंग जो फिजिकल एडिक्शन देता है. दैट इज वाई कि जब इसको छोड़ा जाता है तो अलॉन्ग विद अल्कोहल स्ट्रॉन्ग विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जो सिर्फ साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट नहीं होते, बॉडी प्रॉपर्ली होती है, उसको टैपर ऑफ करना पड़ता है इन द रिहैब सेंटर्स. एकदम से किसी को आप ओपियम पॉइजनिंग जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकती एज जैसे आपको पता है कि अल्कोहल में भी स्लोली टैपरिंग की जाती है. ठीक है, एंड वही बात आ गई कि ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग डिपेंडेंस आर वेरी कॉमन थिंग्स. अच्छा, अब ये बनता कैसे? अच्छा, आपके अगर आप जाओ ना इधर जलोबाग की साइड के ऊपर या बाकी साइड्स के ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा पोपी प्लांट्स मिलेंगे. अब वो पोपी प्लांट्स हमारे घरों में भी उनमें से कुछ यूज़ होता है. पोपी सीड्स कई दफ़ा खशकाश जिसे बोलते हैं. अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी खशकाश का सालन बनाया, हमें बड़ी अच्छी नींद आई. दिमाग में होता है कि शायद ये भी यही है. अदरवाइज इट इज़ नॉट कंटेनिंग एनी टाइप ऑफ ओपियम इन इट. ठीक है, तो बिल्कुल इसके अंदर ओपियम के बिल्कुल कोई ट्रेसेस नहीं होते. ओनली द अनराइप जो उसका फ्रूट होता है और अलॉन्ग विद दैट जो उसका ड्राइड जो आप जहाँ फ्रूट लगा हुआ है ना उसके अंदर जो सीड्स है वो वाला फ्रूट और उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है जो अनराइप जूस होता है उसका, सिर्फ उनसे जो है वो ओपियम जो प्रॉपर वाली निकलती है और उसके अंदर एल्कलॉइड होता है इसका प्रॉपर. ठीक है, इसको और भी बहुत सारे जैसे बोलूँ कि इसको हम हेरोइन, मॉर्फिन, ठीक है, कोकीन, ऑक्सीडीन, ठीक है,
अफीम, खशकाश, लेकिन खशकाश इज नॉट हैविंग द ओपियम एल्किलॉइड इन इट। तो ये इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ये आपसे पूछा जाएगा कि जी पोपी प्लांट में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें ओपियम नहीं है, तो खशकाश और द सीड्स आर दैट पार्ट जिसमें आपको ये नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो आई टोल्ड यू कि पोपी सीड्स जो यूज होते हैं दैट आर बेसिकली नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ ओपियम डेरिवेटिव, उसके अंदर वो एल्किलॉइड नहीं है जो इफेक्ट करता है। ये इसकी सारी फॉर्मुलेशंस होती हैं जिसमें ये मार्केट्स में अवेलेबल होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये पेन किलर है। अगर इसे नॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाए, पैथिडीन के साथ मिला के यूज़ कर देते हैं कई दफ़ा इसको। ठीक है, अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन आपके हम वहाँ पे कोई लंप ऑफ ओपियम रख सकते हैं इन ऑस्पी ऑल्सो, एंड वी कैन आस्क यू, जितने भी आपके टॉक्सी के सैंपल्स पड़े हुए हैं उनमें 3-4 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपने आइडेंटिफाई करना होता है, एक्टिव प्रिंसिपल बताना होता है, साइन सिम्टम पूछे जा सकते हैं और एंटीडोट पूछा जा सकता है। ठीक है, सो द एक्टिव प्रिंसिपल और द एल्किलॉइड विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द ओपियम ऑन योर बॉडी के, इसके 2 ग्रुप्स बने हुए होते हैं। वन ग्रुप इज फेनेंथ्रिन ग्रुप, ठीक है, और अगला ग्रुप होता है बेंजाइल आइसोक्यूटेनिन ग्रुप। इन 2 ग्रुप में से जिस उस वाले ओपियम के अंदर जो पार्ट ज़्यादा होता है उसमें इफेक्ट उसकी तरह का ज़्यादा आता है। नो टॉकिंग, रोजे में भी इतना बोल रहे हो, प्यास लग जाएगी। ठीक है, सो मॉर्फिन, कोडीन एंड इवेन ये आ जाते हैं फर्स्ट वाले ग्रुप के अंदर, और इनकी पोटेंसी ज़्यादा होती है, इनके सिडेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सेकेंड ग्रुप जो आता है उसका आपके अंदर बैपाबरीन आता है, ठीक है, और नार्कोटिन आता है। इनकी बड़ी लेस पोटेंसी होती है और इसमें पेन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन सिडेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं एज कम्पेयर टू जो आपका फेनेंथ्रिन ग्रुप होता है, दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर ग्रुप। तो आपको जब एक्टिव प्रिंसिपल कोई पूछेगा तो आप इन दोनों के नाम, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे यही पूछते हैं, तो आपको ज़्यादातर जो 15% होती है वो मॉर्फिन होती है किसी भी चीज़ के अंदर, अगर वो प्रॉपर होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो मॉर्फिन का आ रहा होता है। दैट इज़ वाई जब आप ओपियम से एक्सट्रैक्ट करते हो, मेडिसिन बनाते हो, तो आप मॉर्फिन निकालते हो उसके अंदर से। ठीक है, एक बेसिकली जितने भी CNS स्टिमुलेटर हैं ये पहले थोड़ी सी स्टिमुलेशन करेंगे, उसके बाद ये एट द एंड डिप्रेशन कॉज कर देंगे। ठीक है, इसी वजह से नार्कोसिस और स्लीप जो है, इंडक्शन जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट होती है। तो ये बेसिकली कॉजेज जो आपका एनेस्थेसिया एंड हाइपोनोसिस है ना, दैट इज अ डिजायर्ड फैक्टर विच वर नीडेड बाय अस एज अ डॉक्टर्स फॉर आवर पेशेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन फीमेल इज इन लेबर पेन और एक्सक्रूशिएटिंग पेन है एक सोल्जर को बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ इंजरी, इन दैट केसेस दिस वाज बेसिकली अ ब्लेसिंग, बट इसका एक्सेसिव यूज, ठीक है, और इसका जो मॉनिटर्ड ना होना यूज जो है वो इसकी एडिक्शन की पावर को बढ़ा देता है, बिकॉज अ पर्सन फील्स वेरी रिलैक्स लाइक दैट बिकॉज ऑफ दिस मॉर्फिन, तो वो इंजेक्टेबल चीज़ों की आदत पड़ जाती है। सिमिलरली दे न्यू कि इस चीज़ से निकला हुआ है, तो लम्प्स को मुंह में रखना, चीज़ों में मिला के खाना, ठीक है, तो वो वाली चीज़ ओपियम को फ्रूटली भी लोग लेते हैं, लेकिन इसको नॉर्मली स्मोक नहीं किया जाता, जैसे चर्च है, गांजा है, तो इन्हें स्मोक किया जाता है। ओपियम नॉर्मली च्यू करते हैं और मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाते हैं। दैट इज वाई जो रूट ऑफ एंट्री इनकी है वो नॉर्मली ओरल है एंड अलॉन्ग विद दैट आईवी या इंट्रामस्कुलर होती है। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू जब हमारे पास हो जाते हैं तो पेशेंट नार्कोसिस में चला जाता है। तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात इफ यू गिव अ लार्जर डोज ऑफ मॉर्फिन टू सम पर्सन, तो उसमें पहले वाले स्टेजेस नहीं आती। जब आप पेशेंट को देते हो, यू डू not need excitement for the patient, ठीक है, you do not need something like that कि उसको कुछ अच्छे से फीलिंग आ रही है, you just need patient to be calm, ठीक है, calm down हो जाए, उसको दर्द ना हो, तो आप थोड़ी ज़्यादा डोज देते हो जो सम टाइम पेशेंट को रिएक्ट भी कर सकती है, तो आपने हमेशा टेस्ट डोज देनी है। तो ज़्यादातर जो आप उसका इफेक्ट लेना चाहते हो फॉर द पेशेंट वो हाइप्नोसिस एंड एनाल्जेसिया है, ठीक है, और वो कंबाइन हो जाए तो नार्कोटिक इफेक्ट होते हैं। बट इफ अ पर्सन इज हैविंग फॉर एग्जाम्पल ट्रू ओपियम और एन एडिक्ट इज हैविंग मॉर्फिन बाय हिमसेल्फ, ठीक है, तो उसमें पहले वाले दोनों चीज़ें गायब हो जाए, उसके अंदर अगर नार्कोसिस की स्टेज आ जाए तो वो नार्कोसिस की स्टेज क्योंकि अनअटेंडेड है, ही और शी इज़ नॉट इन द हॉस्पिटल, ठीक है, वो तो किसी रोड साइड पे भी हो सकते हैं समवेयर, तो उसमें चांसेस ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ कोमा जो बहुत कॉमन है, ओपियम का कोमा वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। दैट इज़ वाई ये जो डोज है दैट इज फैटल डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन हॉस्पिटल्स अलॉन्ग विद मॉनिटरिंग अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आप
हाई डोज दे सकते हो फॉर दिस पर्पस ऑफ नार्कोसिस, बट जो लोग ले रहे होते हैं नॉर्मली वो अपनी डोज को स्मॉल रखते हैं। ठीक है, ये आपकी जो नेचुरल न्यूरल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, रिलीज जो डोपामिन होती है ये भी थोड़ी सी इनहैंस हो रही होती है, दैट इज वाई जो एक हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है। अब आप देखोगे जो इसके रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली आप लोग फार्मा में बहुत डिटेल से पढ़ोगे, यहाँ पे हम सिर्फ जस्ट उसको टच करेंगे। न्यू रिसेप्टर्स होते हैं, कापा रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, एंड देन डेल्टा रिसेप्टर्स होते हैं। ये इसके 3 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, और ओपियम ने जिस रिसेप्टर पे जाके अटैच होना है वहाँ पे उससे डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो सिम्टम साइन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जब ये आ रही है जी कंबाइंड होकर, तो इससे यही इफेक्ट दे रहे हैं कि आपको पेन रिलीज करना है जिस भी रिसेप्टर पे ऊपर जा रही है, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं वो हर रिसेप्टर के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है। ठीक है, जैसे न्यू के अंदर जो आपके आ रहे हैं जो यूफोरिया की स्टेज शुरू में आती है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट जिस दिन कहते हैं, ठीक है, एडिक्शन बिकॉज ऑफ यहाँ पे अटैच हो रहा है वो ज़्यादा आ रही है, एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, दीज आर बाय द इफेक्ट के अगर वो म्यू रिसेप्टर के ऊपर जाके ऑब्वियसली अटैच हो रहा है। कापा के ऊपर हो रहा है तो डिस्फोरिया एंड सेडेशन के इफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन दोनों के ऊपर जो इफेक्ट आ रहे हैं वो मेन आ रहे हैं, तो एनाल्जेसिया के इफेक्ट इनसे आ रहे हैं, और अनडिजायर्ड इफेक्ट जो है ऑब्वियसली वो भी ज़्यादा आ रहे हैं। ये हम वही बात कर रहे हैं। अच्छा जी, देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कैन बी द फैटल डोज। ये भी ऑस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें कि आपको फैटल डोज एंड फैटल पीरियड पता होने चाहिए फॉर ऑल द जितने भी आप स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी पढ़ोगे। सो 200 मिलीग्राम ऑफ मॉर्फिन इंजेक्शन, ठीक है, और 2 ग्राम्स ऑफ ओपीएम इज फैटल, अगर कोई इतनी ज़्यादा एकदम से ले ले, और फैटल पीरियड इज फ्यू आवर्स टू 2 डेज। एंड मोस्टली क्या होता है, डेथ कैसे हो सकती है, आपको क्या लगता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे कर रहा है, मेडुला पे कर रहा है, डेथ कैसे होगी, कोमा भी हो सकते हैं, शाबाश। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस नॉर्मली, और जो डेथ बिल्कुल होती है वो कोमा में तो होती है, लेकिन उसमें जो एंड इफेक्ट होता है वो साइनोसिस और एस्फिक्सिया की सारी जो फॉर्म्स होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होती है। सो मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। अच्छा, अब मैंने एक दफ़ा बहुत दफ़ा आप लोगों को एक बात बताई हुई है कि गैस्ट्रिक लिवाज जब हम करते थे, आई हैव टोल्ड यू कि एमसी एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि आप गैस्ट्रिक लिवाज किस में करते हो, आप कहते हो कि जी वो पॉइजन जिनको हमने ओरल रूट से लिया हुआ है, ठीक है, और विद इन कितनी देर गैस्ट्रिक लिवाज कर सकते हैं जो फायदा देगा आपको, 4 to 6 hours, ठीक है। ओपियम इज अ थिंग इफ इट इज टेकन एज अ लंप फॉर्म फ्रॉम द ओरल, आप इसके बाद भी जो है वो पेशेंट को जो है वो लाइक 12 आवर्स भी गुजर गए, इवन देन आप गैस्ट्रिक लिवाज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत देर में एब्जॉर्ब होता है और इसकी रीसिंथेसिस एज ए टोल्ड होती है। सिमिलरली इफ द मॉर्फिन इज टेकन by obviously IV route या IM route, even then the patient should have a smallest gastric lavage की एक एपिसोड करनी चाहिए because of the resynthesis in the stomach। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का वाइवा क्वेश्चन होता है कि why are you doing gastric lavage in a case when the route is not oral, ठीक है, तो आप ये बताओगे कि इसकी रीसिंथेसिस होती है स्टमक में, that is why it is important to have some gastric lavage along with the antidote which is given in this case, ठीक है। और symptoms 30 to 60 मिनट आफ्टर इंजेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन में ऑब्वियसली सिम्टम्स बहुत जल्दी होंगे बिकॉज यू नो अबाउट कि फास्टेस्ट रूट रूट जो है वो हमारे पास ज़्यादातर IV आ रहा है बिकॉज इसमें नेजल रूट ऐसा नहीं है, ठीक है, लोग ग्रुप्स में कर रहे होते हैं ओपियम पॉइजनिंग ये सारा। देन देयर कैन बी 3 stages, वॉइस, first the stage of excitement, then the stage of stupor and then the stage of narcosis, but as I told you इंटर्स में कर रहे हैं हम डोज ही नहीं देते हैं कि फर्स्ट 2 stages नॉर्मली नहीं आ रही होती, हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो सेडेशन एंड हाइप्नोसिस जो हमारे पास एनाल्जेसिया चाहिए होता है। बट नॉर्मल जो लोग होते हैं आपने देखा होगा इवन इन अल्कोहल में भी आप देखो तो फर्स्ट द पर्सन इज डांसिंग, यूफोरिक, सिंगिंग समथिंग लाइक दैट, देन थोड़ा सा वो ड्राउजी हो गया और उसके बाद एट द एंड द स्लीप इज दैट बिकॉज फर्स्टली CNS स्टिमुलेशन एंड देन CNS डिप्रेशन। तो इसलिए भी नॉर्मली इंसान ग्रेजुअल में जा रहा है, बट इफ अ पर्सन इज हैविंग डेवलप्ड सम टॉलरेंस, ठीक है, एक एडिक्ट है और उसको नॉर्मल से कोई फीलिंग ही नहीं आ रही और वो एकदम से अपनी मॉर्फिन की डोज बढ़ा लेता है या ज़्यादा सारी ओपियम खा लेता है, तो पहली 2 स्टेजेस को छोड़ के वो नार्कोसिस और नार्कोसिस से किस में जा सकता है, कोमा में, एंड द डेथ इज वेरी इमीडिएट फ्रॉम दिस स्टेज बिकॉज द पर्सन इज अनअटेंडेड इन दिस केस, उसको कोई आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन नहीं मिल रही, ठीक है। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट जैसे हर एक CNS उसमें होती है, लॉफ्टर, हेलुसिनेशन, टैकीकार्डिया, ठीक है, कन्वर्जन स्पेशली इन चिल्ड्रन बिकॉज
मुझे बताओ चिल्ड्रन में कोई इंसिडेंट्स होते हैं या ओपीएम मिलने वाला, किसी ने कोई स्टोरी सुनी हुई हो ऐसे? क्या होते हैं? कोई बातें बहुत ज़्यादा पहले ज़माने में कमरों में आजकल जो बेडरूम्स में वो लगा रहे हैं कैमरे, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखते हैं लोग, वो क्यों करते हैं? बिकॉज गवर्नेंसेस मेड सम टाइम क्या करती है कि वो बच्चों को दूध में और इसमें ओपीएम डाल के पिला देती है ताकि बच्चा सोया रहे और वो अपने नॉर्मल काम करे। सिमिलरली आपने कभी देखे सिग्नल्स के ऊपर जो बैगर्स होती हैं फीमेल या मेल, उनके पास जो बच्चे होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोए रहे होते हैं बिकॉज वो उनको या खिलाई होती है या चटाई होती है या इस तरह से दिया हुआ होता है, तो उनको भी ज़रा डोज ज़्यादा दी होती है ताकि वो पहले वाली स्टेजेस के अंदर ना आए, अगली स्टेजेस के अंदर आए। तो उन बच्चों में ओपीएम की वजह से समटाइम कन्वर्जेंस डेवलप हो जाती है। फिर आगे स्टेजेस 2 को, ठीक है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से बंदा जाग रहा है लेकिन वैसे सो रहा है, ठीक है, और ये डेंजरस स्टेज हो जाती है। एंड देन there is a phenomena known as regranulation, जिसमें जो आपके मास्ट सेल्स होते हैं उनकी सरफेस पे प्रोटीन आ जाती है और हिस्टामिन्स रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन रैशेस और स्किन प्रॉब्लम्स कैन आल्सो बी देयर इन ओपीएम पॉइजनिंग। यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बाहर जाके बात कर सकता है, अटेंडेंस हो गई आपको, तो बुक में नहीं मिलेगा। तो ये जो आपकी स्पेसिफिकली इरिटेशन, इचिंग, रैश में पूछते हैं आपसे वाइवा में, बेटा उसको आप ट्यूबलेस होते हैं कि बेटा एक ओपीएम वाला बंदा है, डिटेक्ट खुजाया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है, ऐसा क्या है ओपीएम में जो ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ डीग्रेनुलेशन, कि उसके अंदर हिस्टामिन इस तरह से रिलीज हो रही है, इरिटेशन हो रही है, इचिंग डेवलप हो रही है इन दैट पर्सन। तो स्पेसिफिक रैश भी समटाइम बिकॉज ऑफ ओपीएम पॉइजनिंग नजर आता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये आगे जो डीप कोमा की स्टेज है जो नॉर्मली ग्रेजुअली आ रही होती है और इसमें मसल रिलैक्सेशन, एबॉलिश रिफ्लेक्सेस, डीप साइनोसिस भी होना शुरू हो जाता है पेशेंट को उनके, अगर वो अनअटेंडेड है, अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई उसको दे रहे हो और आपको वो डिजायर्ड है ये, दैट इज अनदर थिंग। अदरवाइज जो नॉर्मल पेशेंट इस चीज़ में जा रहा है, नार्कोसिस में जा रहा है, दैट इज एन अलार्मिंग स्टेज जहाँ पे प्रॉपर कोमाटोज कंडीशन उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। दैट इज अ थिंग जहाँ मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आपके पास आते हैं, ठीक है, और आपने डायग्नोज करना होता है और एग्जाम में भी आपको पूछते हैं कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट ओपीएम कोमा फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, या सीवीए के साथ आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, अल्कोहलिक कोमा के साथ आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आपको पता होने चाहिए कौन से पिन पॉइंट चीज़ें हैं, कौन से साइन सिम्टम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ओपीएम कोमा में नजर आएंगे, बाकी में नजर नहीं आएंगे। सो फेटल टर्मिनल केसेस में एज आई टोल्ड यू कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रही है तो डीप साइनोसिस। अच्छा, मैंने पहले भी बताया है बट नहीं याद होगा कि पुराने ज़माने में कहते थे कि जिसकी डेथ जहर से होती है उसका फेस कैसे हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो दैट इज बिकॉज इन प्रीवियस एजेस ओपीएम इज कंसिडर्ड एज अ वेरी सेफ सुसाइडल एंड होमिसाइडल बिकॉज पेनलेस डेथ होती है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता था। तो जितने भी लोग ओपीएम को यूज़ करते थे, चाहे होमिसाइडल इंटेंशन में या सुसाइडल में, उनकी एंड के ऊपर फेस काला हो जाता था बिकॉज ऑफ द डीप साइनोसिस जो प्रेजेंट होते हैं। तो ये बन गया था, मिसकंसेप्शन बन गया था कि हर पॉइजन से जो डेथ होती है उसमें फेस की स्पेसिफिक कंडीशन होती है, बट दिस इज बेसिकली वेरी यूनिक टू ओपीएम के ओपीएम में लिविडिटी नहीं होती है उतनी, वो डीप साइनोसिस होता है जो फेस को एक टिपिकल ब्लैकिश सा कलर दे देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फ्रॉथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉथ कमिंग, आप और बताओ कि और फ्रॉथिंग किस कंडीशन में हो सकती है बहुत ज़्यादा, शाबाश, ठीक है, ड्राउनिंग में। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकोगे कि ओपीएम की, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नहीं, आपने सिर्फ फ्रॉथिंग पे रहना है अभी, ठीक है, कलर से भी हो सकती है, फोबिया से भी है, इसमें ब्लड टेंशन, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको पता है ना, ड्राउनिंग नहीं पढ़ा गया आप लोगों ने, कि जब आप ड्राउनिंग में होते हो तो आपके जो लंग्स होती है ना उनमें भी प्रॉपर इक्विज्म बन चुका होता है, वो पूरे बल्बस उतने मोटे हो चुके होते हैं, फुल ऑफ ऑल टाइप ऑफ फ्लोज। अब उसमें क्या होता है कि जब आप ओपीएम पॉइजनिंग में थोड़ी ब्लड टेंशन भी होती है, आपने साफ की ओपीएम पॉइजनिंग में अच्छी तरह से साफ की और वो फ्लोदिंग साफ हो गई। इन केस ऑफ ड्राउनिंग आप जितनी दफ़ा भी इसको वाइप ऑफ करो, व्हेनेवर यू गोइंग टू प्रेस द चेस्ट, दोबारा जो है वो फ्लोदिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, जबकि इसमें एक या दो दफ़ा अगर आपने वाइप ऑफ किया तो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। फिर ऑब्वियसली उसमें बहुत थिक और कॉपियस होती है, इसके अंदर थोड़ी थिन और थोड़ी ब्लड डेंसिटी जो है वो मिलती है, अलॉन्ग विद दैट अदर साइंस। लेकिन अगर हम सिर्फ फ्लोदिंग के ऊपर हैं तो वो आपसे पूछते हैं, बार बार में बहुत पूछा जाता है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, दो फ्लोदिंग के केसेस हैं,
डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आपको कुछ नहीं, कैटालिटिक स्पैज़म नहीं देख रहे आप लिपिडिटी नहीं देख रहे, आपने सिर्फ फ्रॉथिंग की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है। Then the breathing is basically chain stroke breathing होती है, short spelled irregular breathing in case of the opium poisoning. कोमा में पेशेंट आया हुआ है, दो तरह से सोचो ना, एक तो आपके पास कोमा में आया हुआ है, कोमा में साइनोसिस हुआ है, उसको फ्रोदिंग जरूरी नहीं है कि आपको कोमा वाले पेशेंट में मिले, फ्रोदिंग ज़्यादातर आपको मिलेगी डेड बॉडी में, ठीक है। ये ज़रा पॉइंट टू कंसिडर है बातें। If a patient comes to you in the emergency in case of deep coma और आपने देखना है कि ये कोमा सीवियर का है, ये कोमा किस चीज़ का है, तो अगर ओपियम का कोमा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उसका फेस देखोगे तो और किसी चीज़ में फेस इतना डार्क साइनोज्ड नहीं होगा, ठीक है। इन दिस केस फेस इज डीपली साइनोज्ड अलॉन्ग विद नो फ्रॉड। अगर डेड बॉडी नहीं है, अगर डेड बॉडी है तो फ्रॉड होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ब्रीदिंग, ऑब्वियसली डेड बॉडी में तो ब्रीदिंग नहीं देखते ना, लिविंग पर्सन में ब्रीदिंग बहुत साइन है, चाइन स्ट्रोक से ब्रीदिंग होती है। फिर आप जब स्किन टच करोगे तो ये बाकी कोमा से डिफ्रेंशिएट करता है कि बार्बिचुरेट कोमा में स्किन थोड़ी गर्म होगी, अल्कोहल में भी डिफरेंट होगी, इंसेक्टिसाइड में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की होगी, तो धतूरा में ड्राई हो जाती है स्किन बिल्कुल। यहाँ पे आपकी स्किन सब नॉर्मल ठंडी होती है, ठीक है, सब नॉर्मल ठंडी और स्वेटी स्किन होती है। आप हाथ लगाते हो तो मॉइस्ट और थोड़ी कोल्ड स्किन, कोल्ड क्लैमी मॉइस्ट स्किन, ठीक है। दो बातें हो गई, तीन बातें हो गई, कलर, ठीक है, उसके बाद ब्रीदिंग, चाइल्ड स्ट्रोक, तीसरी हो गई स्किन, उसके बाद प्यूपल्स। पिंपल्स कैन आर पिन पॉइंट, ठीक है, मियोसिस हुआ होता है इन दिस पॉइंटिंग। तो ये अलॉन्ग विद दैट क्या होगा, जब बंदा सांस ले रहा होगा तो आपको टिपिकल ओपियम की स्मेल आ रही होगी, जो कि थोड़ी माउस लाइक, फ्लैश लाइक, रॉ फ्लैश लाइक स्मेल होती है। तो ये जब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी ना तो आप बहुत आराम से डायग्नोज कर सकते हो कि ये जो कोमा है ये इसकी वजह से। फिर इसके बाद हम क्रोनिक पॉइजनिंग बाद में देखते हैं। अच्छा ठीक है, ये आपकी वो आ गई डायग्नोसिस की जो मैंने भी आपको बताई है, ठीक है। ये पिक्चर ले लो, यहाँ से मैं साइड पेज देती हूँ। तो ये ओपियम स्मेल जो रॉ फ्लैश लाइक स्मेल है, पिन पॉइंट पिंपल्स, चाइल्ड स्ट्रोक, ब्रीदिंग, थ्रेडिंग पल्स, टू वर्ड वही होती है साइनोसिस, फ्रोथ इन केस ऑफ डेड बॉडी, लिविंग में नॉर्मली फ्रोथ नहीं मिलता, ठीक है। एंड मॉइस्ट जो आपकी बिल्कुल प्रेस्पायरिंग, स्वेटिंग, कामी, लो टेम्परेचर वाली स्किन। इसी तरह ऑटोप्सी में आएगी तो ऑटोप्सी में बाकी चीज़ें आपको सेम मिल रही होगी अलॉन्ग विद जो भी आपको फ्रॉड मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये आपकी डायग्नोसिस आप इससे कर सकते हैं। नॉर्मली हम ट्राई नहीं करते हैं कोमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पिन पॉइंट पिंपल, तो आप फौरन आपका दिमाग चला जाना चाहिए कि ओपियम पॉइजनिंग कैन बी देयर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको किस किस से करना है, हेमरेजेस से, मेटाबॉलिक कंडीशन से, डायबिटिक कोमा से, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, और एपिलेप्टिक कोमा, डिफरेंट टाइप ऑफ कोमा है। तो आपने अपने दिमाग में सारे कोमा तो याद नहीं रखने, मेडिसिन तो पढ़ नहीं रहे, आपने इसका कोमा और जब आगे बार्बिचुरेट कोमा और अल्कोहल कोमा देखेंगे, इन तीन कोमास को आपने याद रख लेना तो आप आराम से। और ओपियम का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कि वो भूलता नहीं है कि उसमें कलर ऐसा है और उसमें ये सब कुछ ऐसा है। अपने माइंड में कोई पिक्चर सोच लोगे, बिल्कुल डीप सा कलर हुआ है फेस का और आंखें पिन पॉइंट है, स्किन ऐसी है, तो आपको याद रहेगा कि ओपियम की कोमा के क्या थे। क्या थे बेटा ओपियम के क्या क्या पॉइंट्स थे? आई से शुरू करो। पिंपल कैसा होता है? पिन पॉइंट। स्किन का कलर क्या है? स्किन को फील करोगे कैसी है? नो, स्वेटी, गीली स्किन है। टेम्परेचर सब नॉर्मल, ठीक है, सब नॉर्मल बोलेंगे हम टर्म में, ठीक है। उसके बाद स्मेल कैसी आ रही होगी? रॉ फ्लैश लाइक, ठीक है। उसके बाद अगर पर्सन लिविंग है तो रेस्पिरेशन कैसी हो रही होगी? चाइल्ड स्ट्रोक रेस्पिरेशन होगी, शॉर्ट साइड, डिफिकल्ट लेबर ब्रीदिंग होगी। एक तो पर्सन इज डेड तो मुझसे क्या हो रहा होगा? फ्रॉड आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको होंगे। और ओपियम में साइन सिम्टम्स से ज़्यादा दो बातें इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर्स कौन से थे, ओपियम ने इफेक्ट किधर किया, ओपियम के यही 4-5 साइन सिम्टम है। और फिर हम ट्रीटमेंट को देखेंगे। ट्रीटमेंट में आईवी लिया है या उस तरह से लिया है, जो एंटीडोट आप बेसिकली देते हो दैट इज नैलोक्सोन, ठीक है। जब बच्चा भी, इवन मदर जो होती है जिसको दिया हुआ और बेबी बॉर्न होता है, इवन बेबी को भी हम नैलोक्सोन लगाते हैं क्योंकि वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से फिर बचा देते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट इन बोथ केसेस आपने आईवी भी दिया है, लेकिन अगर दूसरी तरह लिया है तो आपने गैस्ट्रिक इलाज जरूर करना है। और अगर गैस्ट्रिक इलाज किया है एंड द पर्सन हैज टेकन द लंप ऑफ द ओपियम, लेट सम जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है ना जो आपने डाला था अंदर, वो रिमेन इनसाइड द स्टमक फॉर सम टाइम टू न्यूट्रलाइज
कि अगर कोई लंप वहाँ पड़ा जो नहीं निकला तो उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा सिंपल एक्टिवेटेड चारकोल पर्गेटिव्स कैन बी गिवन, आईवी सेलाइन जो आपकी सारी है, अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन द, क्योंकि साइनोसिस बहुत डीप हुआ होता है, बहुत दे रहे हो, ठीक है। थायमीन आप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्फेक्शन बहुत हो जाते हैं, स्पेशली अगर वो एडिक्ट है तो उसको थायमीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड सपोर्टिव मेजर्स कैन बी गिवन। एंटीडोट बहुत एक सिंगल वर्ड है लेकिन ये आपको 2-3 नंबर दे जाता है मोस्टली, तो एंटीडोट का नाम आपको पता होना चाहिए कि वो रिसेप्टर्स पे जाके इफेक्ट करेगा और नैलोक्सोन इज द एंटीडोट। पोस्टमार्टम अपीयरेंस ऑलमोस्ट वही है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। वही हम इंजेक्शन मार्क्स देख सकते हैं अगर एडिक्ट को हमें मिला है। नॉर्मली ऐसे टोल्ड हूँ कि जो हम इस दफ़ा कहीं जाएंगे तो आपको शायद नजर आएंगे ये दादा साहब, उनके पास बहुत सारे आपको मिलते हैं जिनमें अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं हुई हुई ओपियम की, वैसे अगर कोई स्टार्वेशन से उनकी डेथ हुई है, इवन देन आपको इंजेक्शन मार्क्स में मिल रहे होते हैं जो बताते हैं कि क्रोनिक कोई ड्रगिंग है जैसे, ठीक है। साइनोसिस हो गया, टैटू मार्क्स कैन बी देयर, और ये सारी एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गई। एंड इंटरनल में वही स्टमक में आपको नजर आ सकते हैं वो ओपियम लंप की फॉर्म में दिया है, एडिमा ऑफ द लंग कैन बी देयर, और रेस्पिरेटरी चीज़ें जो हैं कंजेशन ऑफ द लिवर कैन बी देयर। और आपने जो भेजना है वो रूटीन विस्टा भेजना है। रूटीन विस्टा क्या होता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन, किडनी के पोर्शंस और लास्ट वाटर में। इसके अलावा सैंपल्स ऑफ द ब्लड कैन बी गिवन ब्रेन एंड लिवर, बिकॉज ये सीएनएस पॉइजन है तो ये न्यूरोटिक है ना, तो न्यूरोटिक में आप इन एडिशन टू द रूटीन विस्टा यू आर गोइंग टू गिव द ब्रेन आल्सो इन दिस कंडीशन, ठीक है। वो क्या है कि वो हेपेटोटॉक्सिक भी है तो आप लिवर में भेज सकते हो फॉर द केमिकल एनालिसिस, लेकिन फ्लूइड वही रहेगा, सुपरसैचुरेटेड, हाइपरसैचुरेटेड, सेलेन सॉल्यूशन। मेडिकल इवन सिग्निफिकेंस एज आई टोल्ड यू, ओपियम एंड ओपिएट्स आर कॉमन ड्रग दैट आर ड्रग ऑफ अब्यूज, दैट इज व्हाई इनकी ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है कि इनका मैलप्रैक्टिस और इनका निगलेक्टेड यूज शुड नॉट बी देयर, कि आप पेशेंट को इंडिकेशन भी नहीं है, आप कोई और हल्का सेडेटिव भी दे सकते हो, कोई और एनेस्थेटिक भी दे सकते हो, लेकिन आप उसको घर में भी ले जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल दे रहे हो और आपको ज़्यादा यूज़ करा रहे हो, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ्स आर वेरी कॉमन, suicidal deaths can be there because easy death है इसमें, और homicide is rare because ये बाद में पकड़ी जाती है कि ओपियम से डेथ हुई है। और withdrawal symptoms के अंदर आपको इस तरह से withdrawal symptoms आते हैं। That is why I told you जिन जिन चीज़ों में withdrawal symptoms होते हैं वो कौन सी टाइप ऑफ एडिक्शन होती है? फिजिकल एडिक्शन होती है और आप टेम्पर पे होते हो दैट कंडीशन, ठीक है। That is all about opium poisoning which is a type of cerebral, और cerebral में कौन सी कहा है? Somniferables, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर हम इनिग्रेंट पॉइजन्स करेंगे। थैंक यू।